Hello and welcome to RP Classes. We are doing 11th Maths 2, third chapter, Permutations and Combinations from HSC textbook, exercise 3.3, page number 55. Now basically this exercise is based on the permutations. Permutations matlab there are n objects. Out of these, you have to arrange r objects at a time. And this can be done in NPR different ways, which is equal to n factorial upon n minus r factorial. This is the basic formula which we use when solving the numericals from this exercise. So let's go for question number 10 now. Find a number of 4-digit numbers that can be formed using the digits 1, 2, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 8. You have to form if the digits can be repeated, cannot be repeated. Okay, first part is repetition allowed. Repetition allowed. And you have to form a 4-digit number 1, 2, 3, 4. बराबर है क्या? Repetition allowed है इसका मतलब क्या बता सकते हो आप मुझे? अगर repetition allowed है इसका मतलब है this place can be filled in 6 ways and 6 ways and 6 ways and 6 ways. So total number of 4-digit numbers कितने होंगे? Total 4-digit numbers कितने होंगे? 6 raised to 4. Correct. 6 raised to 4. That is the first part of it. Second part, repetition not allowed. If the repetition is not allowed, how are you going to tackle this? 6 factorial. Repetition not allowed. So इसमें से 6 में से 4 नंबर आपको अरेंज करना है. So this will be 6p4. That is equal to 6 factorial upon 2 factorial. 2 factorial cancel. 6, 5. 2 factorial के आगे काउंट करो 3, 4, 5, 6, 7, 35, 7, 12, 12, 36, 360 is the answer. Is this okay? Take this screenshot please. Question number 11 देखिए क्या दिया है question? It says how many numbers can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 without repetition? Show that the resulting numbers are between 100 and 1000. 100 to 1000 मतलब it is a 3-digit number. It is a 3-digit number and without repetition. तो कैसे करेंगे बताइए? How is this? Yeah? 3-digit number है तो ये 1, 2, 3. यहाँ पर मैं 0 नहीं यूज कर सकता हूँ. So how many options are there to fill this place? 5. And now 0 is allowed here. इसमें से एक डिजिट यूज हो चुका है कोई भी. So this place can be filled in 5 ways. And इसमें से और एक डिजिट खत्म हो गया है तो 4. Therefore total number of ways और total numbers कितने हो जाएंगे बताइए? And बोले तो into. So 5 into 5 into 4. 5 चौक 20 100. There are 100 numbers which are lying between this and that. Is this okay? Yes. Any doubts about that? No. Next question. Question number 12. That's all it is. Question number 12 देखिए. क्या दिया है question number 12 में? It says find the number of 6-digit numbers using the digits 3, 4, 5, 6, 7, 8 without repetition. 3, 4, 5, 6, 7, 8. No repetition. There is no repetition allowed. Okay. 6-digit numbers. इसमें 3 क्वेश्चन है. How many are divisible by 5? How many are not divisible by 5? अब टोटल नंबर्स अपने को 6-digit नंबर चाहिए. 6 में से 6-digit नंबर तैयार करने हैं. So 6 नंबर्स है, उसमें से 6 मुझे अरेंज करने हैं without repetition. So this can be done in how many ways? 6p6, that is 6 factorial ways. 6 factorial बोले तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ना? तो कितना आएगा वो? 3 2 6 7 चौक 24 24 24 से 12 720. Is this okay? There are 720 numbers. अब उसमें से a part है. How many are divisible by 5? Divisible by 5 कैसे करेंगे? Divisible by 5 क्या होता है बताइए? Last में 5. लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, लेकिन 0 तो इसमें है ही नहीं. So लास्ट में 5 होना चाहिए, बाकी 1 2 3 4 5 तो वैसे ही रहेगा. यहाँ पर 5 होना चाहिए. So this place can be filled in only one way. बराबर है क्या? बाकी there are 5 numbers
and 5 places to be arranged. 5 factor. So this can be done in how many ways? 5p 5 factorial ways. Now 5 factorial मतलब कितने होता है? 120 ways. Yes. So there are 120 numbers which are divisible by 5. 120 numbers are there which are divisible by 5. These are total numbers. Yes. These are divisible by 5. So not divisible by 5 क्या होंगे? Subtract. That's very simple. Not divisible by 5. Not divisible by 5. कितने होंगे numbers? It is 600. total numbers minus this. So that will be 600 numbers which are not divisible by 5. Is this clear to you all? Okay. Take the screenshot please. Question number 13 देखिए अब. A code word is formed by two different English letters followed by the two non-zero distinct digits. Code word. जैसे for example MS12 होता है ना, तो 2 digit letters and numbers Okay. followed by 2 numbers. Example के तौर पर MS12 गाड़ी का होता है ना वैसे. Okay. तो find the number of such code words. Also find number of such code words that end with even digit. Okay. How many alphabets are there? 26. Yes. 26. Okay. इसमें repetition इसमें repetition के बारे में अपने को कुछ नहीं बताया गया. Isn't it? Repetition के बारे में. So we will assume that there is no repetition allowed. We'll assume that no repetition allowed. अगर repetition allowed क्योंकि इन्होंने इस पे mention नहीं किया है. ठीक है? So 26 alphabets are there. उसमें से मुझे 2 arrange करने हैं. In how many ways I can do this arrangement? 26p2, that is 26 factorial upon 24 factorial, that is equal to 26 into 25. काम खत्म हो गया? नहीं. And काम खत्म नहीं हुआ. And समझ में आ गया? How many numbers are there? How many numbers are there? 0 to 9. So 10. 10. बराबर है? 0 is not जीरो यहाँ पर इंक्लूड किया है कि नहीं किया? नॉन जीरो डिजिट. नॉन जीरो डिजिट्स होने चाहिए ना. हाँ. मतलब जीरो इज नॉट अलाउड. तो 9 में से 2 जगह अपने को फिल करनी है, अरेंज करना है. सो दिस विल बिकम 9p2, दैट इज 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, दैट इज 8 into 9. इज दिस ओके? सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बोलिए. 26. टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू 26 into 25. is equal to 26 into 25 into 8 into 9. चलो बताओ कितना आएगा ये? 25 8 200 200 954 5 9 में 18 23 0 0 बीच 8 46,800. करेक्ट. इज दिस ओके? और भी दिया है उसमें. उन्होंने क्या दिया है? फाइंड द नंबर ऑफ सच कोड वर्ड्स दैट एंड विथ इवन डिजिट. एंड विथ इवन डिजिट. अब देखो यहाँ पे तो उतना ही रहेगा. कितना? 26 into 25. लेकिन उधर इवन डिजिट. व्हाट आर द इवन डिजिट्स? 2, 6, 8. हाँ 2 4 6, 8. 6 8. तो ये जगह how many ways? 4. 9 में से एक यूज हो चुका है. हाँ. 8 ना. हाँ. बराबर है क्या? So this will become this is 650 or whatever. Therefore total number of required arrangements. Total number of required arrangements. Required arrangement कौन सी requirement है वहाँ पे? कि भाई वहाँ पे even number होगा last में. So that will be 26 into 25 into 8 into 4. 25 8 2 इंचेस सभी चौक 4 उधर से 104 into 200. That is equal to 1 2 and that is 20,800. These are the number of arrangements which are about even integer at the end. Is that okay? Screenshot please. Question number 15. 13 solve 15. Find the number of arranging 11 distinct objects taken 4 at a time so that a specified object is always occurs and never occurs. समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं समझे? 11 digits 11 objects are there. उसमें से मुझे 4 objects अरेंज करने हैं. ठीक है? 11 objects are there. उसमें से 4 object
मुझे अरेंज करने हैं, तो उसमें there are 11 objects and 4 are to be taken at a time. देखो ऐसा है, 11 ऑब्जेक्ट्स आर देयर, उसमें से 4 ऑब्जेक्ट्स मुझे अरेंज करने हैं, ठीक है। लेकिन 11 में से एक पर्टिकुलर x ऑब्जेक्ट है। ये 11 ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं? उसमें एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिसको मैं बोलूंगा x प्लस बाकी के 10 ऐसे है। अब पहले पार्ट में वो क्या बोल रहे हैं कि भाई उसमें ये x तो आना ही चाहिए, प्लस बाकी के 3 ऑब्जेक्ट आएंगे, ऐसे मिला के कुल मिलाकर 4 ऑब्जेक्ट्स आएंगे। समझ में आ रही बात? इज दैट क्लियर? दैट इज द फर्स्ट पार्ट कि वन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंक्लूडेड, वन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंक्लूडेड। समझे क्या? ओके, तो ये है पहला वाला प्रॉब्लम, समझे क्या? इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। अब 4 को मुझे अरेंज करना है। तो पहले वो जो x है भाई, मैं उसको अरेंज कर लेता हूँ। फर्स्ट एक्टिविटी इज अरेंजिंग x। तो हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स, हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर फॉर अरेंजिंग द x? अरेंज x, अरेंज पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट x। देयर आर 4 वेज वी कैन डू दिस, बराबर है ना? Yes. काम खत्म हो गया। इसमें से कोई एक जगह चला गया, समझो x के लिए मैंने यूज कर लिया। एंड अब बचे कितने हैं? 10। और 10 में से मुझे कितने अरेंज करने हैं? 3। तो हाउ मेनी वेज आई कैन डू दिस एक्टिविटी? 10p3। सो टोटल नंबर ऑफ वेज और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू 4 into 10 factorial upon 10 minus 3 7 factorial। 7 factorial मन ही मन में गया। So it will be 8 9 10। तो कितना बचा? This will become 4 into 7 20। That is 0 4 2880। Is this okay? Is that clear? Any doubts about that? समझे? Okay? Yeah. Next question. Next part of this. अब इसमें उन्होंने पहले पार्ट में क्या बोला है कि a particular object is included, object x object is included। अब दूसरा पार्ट जो है कि a particular object x is excluded, उसको नहीं लेना है उधर चारों में से। मतलब there are 11 objects, x plus 10 ऐसे टोटल 11 objects आते हैं, उसमें से x जो है उसको मुझे नहीं लेना है, तो बाकी के 10 है उसमें से 4 सिलेक्ट करने हैं, 4 मुझे अरेंज करने हैं। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बोलो। 4 है? 10 में से 4 अरेंज करने हैं, उसको 10p4 बोलते। दैट इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 minus 4 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल मन ही गया, तो 7 8 9 10। दैट इज इक्वल टू 70 into 720 नहीं 72। दैट इज 0 7 2 14 7 7 1 50 आणि 50 5040 5040। These are the number of arrangements. A particular object is always included, and these are the number of excluded, और ये है included. Is this clear? Any doubts? Screenshot please. Next question. Question number 17. Question number 17. देखिए क्या दिया है? 3 boys and 3 girls are to sit in a row. 3 boys and 3 girls are there. Find how many ways can this be done if there are no restrictions? No restrictions. So, total number of ways. कैसे होगा? Total number of ways कितना हो जाएंगे? 6 में से 6 मुझे अरेंज करने हैं ना? So that is 6p6, that is 6 factorial। 6 factorial मतलब 720। बराबर है क्या? 6 factorial that is 720। Second part क्या बोल रहे? There is a girl at each end। Okay, there is a girl। टोटल 6 लोग हैं, 1 2 3 1 2 3। यहाँ पर और यहाँ पर गर्ल्स को अरेंज करना है। तो पहले ये 2 जगह है हम अरेंज कर लेते हैं। How many ways I can arrange?
3 में से मुझे 2 गर्ल्स को वहां पर बिठाना है. हाँ. So 3p2 3p2 that is 3 factorial upon 1 factorial that is equal to 3 factorial 3 to 1 that is 6. Is the first task over? Yes. फर्स्ट टास्क इज ओवर. सेकंड एक्टिविटी क्या है कि अब भाई टोटल 6 लोग हैं, उनमें से 2 गर्ल्स स्टूडेंट्स को वहां पे बिठा दिया है. अब कितने बचे हैं? 4. और चारों में से 4 को वहां पर मुझे बिठाना है. So how many ways I can do that? 4p4 that is equal to 4 factorial. Yes. So total number of arrangements कितने हो जाएंगे? Total number of arrangements कितने हो जाएंगे? 6 into 4 factorial. It is equal to 6 into 4 factorial. That is 4 3 दूनी 24 24 144. Is this okay? Any doubts about that? Clear? Fine. अगला है थर्ड पार्ट. क्या बोला उन्होंने? जैसे the boys and girls are at alternate places. इसको मैं स्टार मार्क करता हूं. बॉयज एंड गर्ल्स एट अल्टरनेट प्लेसेस. चलिए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं. तो हम ऐसा मान के चलते कि भाई 1 2 3 4 5 6 बॉय बॉय बॉय. ठीक है. 3 places 3 boys. How many ways you can do that? 3 factorial. 3p3 that is equal to 3 factorial. ये arrangement of boys. और girls क्या आएगा? Again this is G and G. 3p3 that is equal to 3 factorial. ठीक है. ये एक तरीका है, मतलब this and this और 1 2 3 4 5 6. अब ऐसा भी तो हो सकती है भाई यहाँ पे गर्ल्स एंड गर्ल्स है ना. So this is 3 factorial and boy and boy. So and 3 factorial for boys. Is this okay? And बोले तो into और बोले तो plus. So total number of arrangements क्या होगा? Total number of arrangements बोलो. 6. It is equal to 3 2 6 into 6 plus 6 into 6. So 72 ways are there to make this arrangement. इसलिए star. Because generally we tend to forget the second arrangement. Is that okay? And all boys sit together. All boys sit together. जब together होता है तो हम उसका bunch बनाते हैं. All boys sit together कैसे करेंगे बताओ? First of all, Boys का bunch बना देते हैं. 3 factorial. बराबर क्या? 3 boys and to be arranged at 3 places. बराबर है ना? So this can be done in 3 factorial ways. अब ये एक bunch होगा plus 3 girls. So total कितने लोग हैं? 4. 4 में से 4 मुझे arrange करने हैं. तो and how many ways I can do this? This can be done in 4 factorial ways. So what is the total number of arrangements? बोलो. 4 factorial. Total number of arrangements is equal to 4 factorial into 3 factorial. म्हणजे 144 ways are there. Is this clear? Take the screenshot please. So this exercise is over now. Third exercise. यहाँ पर हमने permutations देखे, लेकिन ये permutations जो थे उसमें कोई रिपीटेशन नहीं था. मतलब अगर आप क्वेश्चंस देखें कि अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड हिस्ट्री, ये कौन सा क्वेश्चन है इसका? दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 3.3. एल्गोरिदम माधुरी है ना. एल्गोरिदम माधुरी या फिर क्या दिया है और 3 boys. सोलापुर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यहाँ पे कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ है. कहाँ रिपीट हुआ है कुछ? बट अगर वहीं पर आप पेज नंबर 55 में देखिए तो
तो वहां पे कुछ लेटर्स कुछ वर्ड्स दिए हैं, गुड गुड, इसमें ओ रिपीट हो गया। अब इस ओ को और इस ओ को अगर मैं चेंज करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। इंडिया, इस आई को और इस आई को चेंज करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर है क्या? मैथमेटिक्स। तो इसका मतलब है अब हम देखने वाले हैं परम्यूटेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स रिपीटेड है, ठीक है। तो इसको उन्होंने नाम दिया है परम्यूटेशंस व्हेन सब ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। परम्यूटेशंस मतलब अरेंजमेंट्स, परम्यूटेशंस व्हेन सब ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। Some objects are identical. तो उसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं आपको बता दूं। समझो कि यहाँ पे टोटल n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर देयर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक शब्द लेता हूँ यहाँ पर, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन समझे? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स काउंट करो तो ये आएगा 3 3 6 3 9 3 12 2 14। सो n इज इक्वल टू 40। समझे? अब कौन कौन रिपीट हो रहा है भाई? वो देखो, r कितनी बार आ रहा है? 1 2। सो r इज कमिंग ट्वाइस, बराबर है क्या? देन e कितनी बार आ रहा है? 1 2 3। E is coming twice, ठीक है। फिर और कौन रिपीट हो रहा है? G तो नहीं आ रहा है, S नहीं हो रहा है, N हो रहा है 2 बार। N is coming twice and T is coming twice। बाकी है कोई? नहीं, बाकी सब ठीक है। Is that okay? So total 14 objects are there, n number of objects are there in all। उसमें से पहला जो एक there is one object which is getting repeated p times, दूसरा ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है q टाइम्स, तीसरा ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है r टाइम्स, चौथा ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है s टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स, different arrangements is given by n factorial upon p factorial into q factorial into r factorial into s factorial. Is this okay? That's it. That is it. Total number of objects, ये p टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये q टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये r टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये t टाइम्स s टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो this is the formula. Very simple. Is that clear? Okay. Well, with this, let me start with exercise 3.4. Exercise 3.4 इसी के ऊपर बेस्ड है, तो बस आपको यही वहाँ पर अप्लाई करना है और सॉल्व करना है। Exercise 3.4, which is based on permutations of objects when some objects are identical. Is that okay? So in that, I'll go for 1 maker 2, Shantaram. क्या दिया है वहाँ पे? Find the number of permutations of letters in each of the following words. शांताराम, बहुत सिंपल। रिप्रेजेंटेशन है क्या इसमें? उन्होंने रिप्रेजेंटेशन नहीं, सिर्फ रिप्रेजेंट दिया है। चलो ठीक है, कोई शांताराम बता दो फटाफट, चलो बताओ। शांताराम टोटल n कितना है? 3 4 6 9। रिपीट कौन हो रही है? ए रिपीट हो रहा है कितनी बार? 3 बार है। और कौन रिपीट हो रहा है? बस ए ही रिपीट हो रहा है। सो द आंसर इज 9 factorial upon 9 factorial upon 3 factorial। 3 factorial का यार 3 से आगे काउंट करो, 4 5 6 7 8 9। तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा, इज इट ओके? सो दैट विल बी 60,480। एनी डाउट्स अबाउट दैट? बहुत सिंपल है। 1 मेगा वो देख लेना यार, तुम अभी मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 पे जाता हूँ। आई होप दिस इज वेरी इजी। समझ में आ गया तुमको ये? Fine. Next, question number 2. You have 2 identical books on English. 2 identical books. English के 2 books है। 3 identical books on Hindi. हिंदी के
3 बुक्स है और 4 आइडेंटिकल बुक्स ऑन मैथमेटिक्स, मैथ्स के 4 बुक्स है. फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज ऑफ अरेंजिंग देम ऑन अ शेल्फ. टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने हो गए? n इज इक्वल टू 3 2 5 4 9 9. सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे? n फैक्टोरियल अपॉन e फैक्टोरियल इंटू h फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल that is equal to 9 factorial upon 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial, whatever. Is this okay? Any doubts about that? Okay? So whatever that answer comes out to be, you check कर लेना ये आंसर कितना आता है तो आगे छोड़ रहा हूँ, but this is it. Okay? Take this screenshot. I'll switch over to the next question. Question number 3. क्या दिया है? A coin is tossed 8 times. In how many ways can be obtained 4 heads and 4 tails, at least 6 heads? Coin is tossed 8 times. पहला पार्ट है 4 heads 4 tails और दूसरा पार्ट है at least 6 heads. ऐसा दिया है ना? आंसर कैसे करेंगे? Coin is tossed 8 times. 8 times. तो n is equal to 8. They are saying कि 4 बार हेड आना चाहिए. So I'll say p is equal to 4 and q is also equal to 4. So in how many different ways this is possible? मतलब पहला हेड फिर टेल फिर हेड फिर टेल फिर हेड फिर टेल, ऐसा भी हो सकता है. 4 बार हेड 4 बार टेल भी हो सकता है. 3 बार हेड 3 बार टेल फिर 1 बार हेड ऐसा. So total number of arrangements कितने हो सकते? Total number of ways. Total number of ways. It will be n factorial upon 3 factorial upon q factorial. So it will be 8 factorial upon 4 factorial into 4 factorial. I hope this is clear. Yes. At least 6 heads कैसे possible होंगे? At least 6 heads मतलब 6 heads and 2 tail और या and है ये और होगा और बोलो 7 heads and 1 tail और all 8 heads. अब मुझे इसको अरेंज करना है. सो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दिस इज पॉसिबल. दिस इज लाइक n फैक्टोरियल मतलब 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और प्लस 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और प्लस 8 फैक्टोरियल. सो दैट इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल गया 7 8 अपॉन 2 प्लस 7 फैक्टोरियल गया 8 प्लस 8 फैक्टोरियल होते हैं. सो दिस इज 2 4s are 28 प्लस 8 प्लस 8 फैक्टोरियल. 8 फैक्टोरियल कितना आता है? 8 फैक्टोरियल विल बी एक सेकंड ना यहाँ पर 8 फैक्टोरियल नहीं होगा. n इज इक्वल टू 8 n इज इक्वल टू 8 और वो सारे रिपीटेड है मतलब p इज ऑल्सो इक्वल टू 8. सो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल. जस्ट बी केयरफुल यार, समझे क्या? So 8 factorial upon 8 factorial मतलब this is 1. समझे? क्योंकि सब all 8 heads मतलब उसका एक ही तरीका है h h h h h h. ठीक है? So that will come out to be 28, 36, 37. 37 ways are there in which this can occur. Is that okay? Yes. All right. Take the screenshot, please. Question number 6 देखिए. Question number 6 क्या दिया है? Find the number of different arrangements on the letters in the word Maharashtra. How many of these arrangements have letters R and H never together, all the vowels together? बहुत बढ़िया. Maharashtra. Okay. चलिए बताइए what is N? 3 3 6 3 9 11. Repetitions? A कितनी बार है? 1 2 3 4. So A is coming 4 बार. Okay. H 2 बार आ रहा है. Okay. R 2 बार आ रहा है. और कोई रिपीटेशन दिख रहा है तुमको? S T no. So total number of arrangements कितने होंगे? 11 factorial 4 factorial 2 factorial 2 factorial. I hope this is clear. 4 factorial मन ही मन में गया. 4 के आगे काउंट करना शुरू करो. 5 6 7 8 9 10 11 divided by 2 into 2
So this is 2 to the 4, 2 the 8. Correct? So this will become like 6 पंचे 30 आणि 10 300 300 into 7 आणि 14 14 9 26 असे into 11. So that will become कितना 300 into 11 66 6 आणि 11 22 आणि 6 28 2 11 आणि 2 13 and that will be 0 0 7 18 8 24 25 2 23 40 41 4,50,800. This is the first answer. Is this okay? All right. और आपको चाहिए तो आप इसको आंसर को ऐसा ही छोड़ सकते हैं. I mean when it is too much of calculation तो आप उसको ऐसा छोड़ सकते हैं. कई बार ऑप्शंस इसी फॉर्मेट में दिए होंगे फैक्टोरियल में. चलिए उसका अगला पार्ट क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कि how many of these arrangements have letters R and H never together? R and H never together. वो कैसे करोगे आप बता सकते हैं? R and H never together. None of letters R and H together. इसमें से R and H is not together. R and H not together. तो चलिए उसके लिए क्या करते हैं पता है? फिर R और H तो रिपीटिशन में है ना? R और H तो रिपीटिशन में है. तो उसको क्या करना पड़ेगा अपने को? बाकी लेटर जो है उसको पहले अरेंज कर लेते हैं. ठीक है. तो उसको अरेंज करने का कौन सा तरीका है? क्योंकि देयर आर टोटल, अब ये जो 4 लेटर्स है इसको हटा दो. 4 लेटर्स इसमें हटा देंगे तो अरेंज अदर लेटर्स. अरेंज अदर लेटर्स फर्स्ट. ठीक है. तो अदर लेटर्स मतलब क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 7 हो जाएगा. इसमें a रिपीट हो रहा है 4 बार. तो in how many ways I can do this activity? इसको मैं कर सकता हूँ 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल. That is the first activity, activity A. काम खत्म हो गया? नहीं. अब यहाँ पर मैंने टोटल 7 लेटर्स को अरेंज किया है. All these 7 letters which are excluding R and H, they are arranged here. Is that clear? तो अब जो बची है जगह मेरे पास, उसके ऊपर मुझे इस R और H को अरेंज करना पड़ेगा. कितनी जगह बची है? 8 प्लेसेस आते हैं. बराबर है क्या? इसमें से 8 प्लेसेस जो है इसको मुझे अरेंज करना है. ठीक है. 8 की. हाँ. अब देखो जब अरेंज करते हैं तो 8 में से पहले तो मुझे इन 8 जगहें जो है 8 प्लेसेस है उसमें से कोई भी 4 प्लेसेस चुननी पड़ेगी, सिलेक्ट करनी पड़ेगी. याद रखो सिलेक्ट. बराबर है क्या? 8 प्लेसेस में से 4 प्लेसेस सिलेक्ट करो. समझ में आ गई बात? अगर अरेंज करना हो तो परम्यूटेशंस होते हैं, याद रखो. और सिलेक्ट करना हो तो क्या होता है? कॉम्बिनेशंस होते हैं. अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन को मुझे आपको पहले इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं यहाँ पे कि देयर आर n ऑब्जेक्ट्स. उनमें से मुझे r ऑब्जेक्ट्स अगर सिलेक्ट करने हैं तो उसके लिए मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है NCR. जैसे इसका होता है NPR. और NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. फिलहाल के लिए आपको ये फॉर्मूला एक्सेप्ट कर लो. ठीक है. तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा कि 8 में से ये 4 जगह सिलेक्ट करनी पड़ेगी. एंड दिस कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज? 8C4. समझे? तो फर्स्ट एक्टिविटी इज अरेंज द 7 लेटर्स. सेकेंड एक्टिविटी इज सिलेक्ट द 4 प्लेसेस. और अब मेरा थर्ड एक्टिविटी होगा कि भाई जो भी 4 प्लेसेस मैंने सिलेक्ट कर लिए, समझो ये 4 प्लेसेस मैंने सिलेक्ट किए हैं, ये समझो कि 4 प्लेसेस, तो उन 4 प्लेसेस पर ये 4 ऑब्जेक्ट्स अरेंज कर दो. अरेंज व्हाट? ये H जो 2 बार आ रहा है और R जो 2 बार आ रहा है. समझ में आ गई बात? सो वो मैं कैसे कर सकता हूं? दिस इज टोटल n इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. सो अब मेरा टोटल एक्टिविटी कैसे बन रहा है? परफॉर्म, यू कैन परफॉर्म एक्टिविटी A
in these many ways and activity B in these many ways and activity C in these many ways, तब जाके मेरा टोटल एक्टिविटी हो रहा है यहाँ पे कि R and H is never together. समझ में आ गई बात? Is that okay? Yes. तो कुल मिलाकर what will be the final answer here कि भाई टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने होंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. आई होप दिस इज क्लियर. समझ में आ गई बात? ओके तो अब मुझे ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा. 7 फैक्टोरियल देखो 4 फैक्टोरियल काउंट कर दो तो आएगा 4 के आगे 5 6 7. ओके फिर 8C4 क्या होता है 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल क्योंकि n माइनस है मतलब 8 माइनस 4 इज 4 फैक्टोरियल. दिस इज क्लियर. इंटू 2 फैक्टोरियल 1 ही 1 में गया 3 इंटू 4 अपॉन 2. एग्री? नो दैट इज इक्वल टू दिस इज अगेन 5 6 7 4 फैक्टोरियल 1 ही 1 में गया 5 6 7 8 अपॉन 4 फैक्टोरियल उल्टा काउंट 4 3 2 1. ओके इंटू 2 2 जा 4 सो 3 इंटू 2. तो चलिए देखिए अभी क्या आएगा ये यहाँ पर इसमें से 4 2 जा 8 एंड 3 3 गया. ठीक है तो 5 6 7 5 इंटू 6 इंटू 7 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 2 तो ये कितना आएगा ये 7 5 30 आणि 30 3 900 इंटू 7 7 49 इंटू 2 that is 98. So this will become what? 0 0 8 9 72 7 9 9 81 88 88,200 is the answer. Is this clear? Yes. यहाँ पर मैंने सिर्फ इसमें से पहला पार्ट सॉल्व किया है. अब मुझे इसमें से दूसरा पार्ट भी सॉल्व करने के लिए जाना है बट बिफोर दैट यू प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. अगला पार्ट वो बोल रहे हैं ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर. ऑल वॉवेल्स टुगेदर. ठीक है स्क्रीनशॉट ले लिया. चलिए अब मैं यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ. ऑल वॉवेल्स टुगेदर के लिए मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा इसको. ऑल वॉवेल्स टुगेदर. सेकंड पार्ट ऑल वॉवेल्स टुगेदर. कौन कौन से वॉवेल्स है भाई यहाँ पे बताइए मुझे. अच्छा ऑल वॉवेल्स आर देयर. यस सिर्फ एक ही वॉवेल देखना है मेरे को. ए 4 बार आ रहा है. Isn't it? Yes. तो उस 4 वॉवेल्स का मुझे बंच करना पड़ेगा. 4 वॉवेल्स का बंच करना पड़ेगा. Yes. तो 4 एज 4 जगह पर कैसे हम लिख सकते हैं. But 4 factorial upon 4. करेक्ट एग्जैक्टली 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल क्योंकि वो रिपीटेड है मतलब इट इज ओनली वन वे. इट इज ओनली. अब इसका एक बंच बना दीजिएगा. ये एक हो गया. इसका एक बंच बना दिया. ये पहला एक्टिविटी है वो मैंने कर दिया. अब ए को छोड़ के मतलब 11 में से 4 गए तो टोटल कितने हो गए वहां पे. ए को छोड़ के मेरे पास 7 आर देयर. 7 आर देयर. लेकिन मतलब कुल मिलाकर टोटल कितने हो गए एंटिटीज. 8 एंटिटीज है. लेकिन इसमें 2 H है और 2 R है. ओके इसमें 2 H है और 2 R है. तो हाउ इज दिस पॉसिबल नाउ. 8 factorial हाँ ये रिपीटिशन के साथ है. सो दिस कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज. 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल. इज दैट ओके. ऑलराइट. सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे 1 एंड दिस ना. सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स is equal to 1 into this ना. so 8 factorial upon 2 factorial into 2 factorial. 2 factorial गया जो भी कुछ आंसर आएगा वो. लेकिन मेरे ख्याल से आंसर जो उन्होंने दिया है वो यही आंसर दिया है. इज दैट ओके. एनी डाउट्स अबाउट दैट. ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी गो फॉर is question number 10. This was 7th, right? कौन सा था ये 6th था. I'll go for question number 10. क्या दिया है question number 10 में. Find the number of different ways of arranging the letters in the word arrange. Arrange. This is the first part of the question. Arrange.
फटाफट बताओ इसका पहला वाला आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? अरेंज। अरेंज में देयर आर 7 टोटल लेटर्स आर देयर। Yes. इसमें सो n इज इक्वल टू 7। इसमें 2 बार a आ रहा है, 2 बार r आ रहा है। That's it. So the total number of arrangements will be 7 factorial upon 2 factorial into 2 factorial. That is the first answer. Is this okay? Isn't it? ठीक है? अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो क्या आएगा? वो 7 के आगे फॉर्म काउंट करो, 3, 4, 5, 6 and 7 upon 2. 2 2s are 4. So this will become 1260. 1260. Okay? अब हमने इसके अंदर क्या क्वेश्चन पूछा है? क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, उन्होंने दिया है डू नॉट हैव, ऐसा दिया है ना, उन्होंने क्या दिया है? डू नॉट हैव। तो एक्चुअली उसको बोलना पड़ेगा हैव 2 R's and 2 A's नॉट टुगेदर, क्योंकि उन्होंने जो बोल दिया है कि हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स डू नॉट हैव नहीं, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स हैव 2 R's and 2 O's and 2 A's not together। ठीक है? क्वेश्चन को मॉडिफाई किया क्या आपने बुक में? मैंने क्या बताया? 2 A's and 2 R. डू नॉट को इरेज करो, डू नॉट को इरेज करो, 2 R's and 2 A's not together। 2 R's 2 A's not together मतलब सेपरेट है, दे आर सेपरेट। ये अपने को यहाँ पे बताया गया। इज दिस ओके? Yes. कैसे करेंगे इसको? नॉट टुगेदर, तो मैं क्या करूंगा कि आई फाइंड आउट द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर 2 R's and 2 A's are together। समझे क्या? 2 R's और 2 A's को टुगेदर मतलब ये R होंगे दोनों के दोनों, फिर A होंगे, ठीक है, और फिर बाकी R A हो जाएंगे, फिर N G E ये सारे लेटर्स हो जाएंगे। अब मुझे पहले ये 2 R इकट्ठा लिखने का क्या तरीका है? 2 factorial अपॉन 2 फैक्टोरियल। So this is 2 factorial upon 2 factorial and ये दो A's 2 factorial upon 2 factorial, बराबर है क्या? Yes. अब इसका एक बंच हो गया, नो दिस इज वन, एक ही तरीका है, इसका भी एक ही तरीका है। अब इसका एक बंच हो जाएगा, फिर इसका एक बंच हो जाएगा, बराबर है, Yes. और ये 3, बराबर है क्या? हाँ, बराबर। N G और E। तो Yes. टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए? 5 ऑब्जेक्ट्स हो गए, और पांचों में से 5 अरेंज करने हैं मुझे। हाउ मेनी आई कैन डू दैट? 5p5 फैक्टोरियल वेज आर देयर, बराबर है क्या? 5p5 मतलब 5 अरेंजमेंट हो गए इसमें। सो अगर मुझे टोटल अरेंजमेंट्स करने हैं तो ये कितने हो जाएंगे? 5 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ फोर्स आर ऑलवेज टुगेदर इज ओनली 5 फैक्टोरियल ना, 5 4 3 2 नहीं गड़बड़ है। या 5 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑलवेज हमेशा इकट्ठा ही रहेगा। And then subtract. नंबर ऑफ 2 A's are together and 2 are together, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 5 फैक्टोरियल मतलब कितना हो जाएगा? 5 4 3 2 120 लेगा। सो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स 1260 इज इक्वल टू 1260 माइनस 120। कितना आएगा ये? हाँ, इसका आंसर उन्होंने पीछे क्या दिया पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। इसको और ये आएगा 1140 1140 अरेंजमेंट्स आ जाए इन विच दे आर नॉट गोइंग टू बी टुगेदर। इज दैट ओके? ठीक है, ये आंसर चेक करो बिकॉज दिस इज द करेक्ट आंसर।
शायद आंसर पीछे दिया ऊपर गड़बड़ है, चेक करो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 11 देखो अभी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है यहाँ पे? How many distinct 5-digit numbers can be found using the digits 32, 32, 45? 32, 32, 45. 5-digit number चाहिए। 5-digit number चाहिए मतलब there are 5 places। और लेकिन यहाँ पर अपने को 6 दिए गए हैं। अब इस 6 में से मुझे कोई भी 5 डिजिट सिलेक्ट करने हैं, समझे क्या? 6 में से 5 मुझे अरेंज करने हैं, अरेंज, आई हैव टू अरेंज ना। तो जो भी है वो मुझे अरेंज करना पड़ेगा, सो इट विल बिकम 6p5। लेकिन नंबर ऑफ रिपीटिशंस भी तो है यहाँ पर, isn't it? तो आई विल डिवाइड दिस, मैं इसको डिवाइड करूंगा रिपीट वाले भाई। तो 3 is coming twice and 2 is also coming twice. It is 2 factorial and 2 factorial. So what is this going to be? Well, 6 factorial upon 6 minus 5, that means 1 factorial into 2 factorial into 2 factorial. So what will the answer here? 2 factorial gaya. 3, 4, 5 and 6 upon 2. So this will become 2 3s are 6. So this is 3 3s are 9. 9 into 20. 180. That's the answer. Is that okay? Is that clear? Question number 12. Question number 12. क्या दिया है यहाँ पे? It says find the number of distinct numbers formed using the digits. Formed using the digits 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? So that odd positions are occupied by odd digits. Odd positions are occupied by odd digits. अब इसमें even numbers कौन से हैं वो बता दो मुझे। There are 4, 6, 8 and odd numbers कितने हैं? 3, 5, 7 and 9. So these are 4 odd digits are there. ठीक है? How many number of distinct numbers formed using this? Okay. So अब मुझे यहाँ पर इनको अरेंज करना है। मैंने कितने डिजिट का नंबर तैयार करना है कुछ बताया क्या? Find the number of distinct numbers formed using these digits. Okay. वैसा कुछ भी नहीं मैंने अरेंज किया। So I'll say 1. This is odd place. ठीक है, फिर ये इवन प्लेस हो गया, फिर ऑड प्लेस, फिर इवन प्लेस, फिर ऑड प्लेस, फिर इवन प्लेस, फिर ऑड प्लेस, ऐसा हो जाएगा ना। 3 3 6 7 3 2 6 1 7। सो दीज आर द ऑड प्लेसेस, यूनिट्स प्लेस 1 3 5 and 7। तो ये चारों जगह जो है ऑड प्लेसेस की, उसके जगह पर 4 नंबर्स मुझे अरेंज करने हैं। दिस कैन बी डन इन 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल वेज। इज दिस ओके? बराबर है क्या? सिमिलरली ये जो इवन प्लेसेस है, 3 इवन प्लेसेस, 3 इवन प्लेसेस एंड 3 इवन नंबर्स आर देयर, तो उसको अरेंज करने का तरीका है 3p3 दैट इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल वेज। बराबर है क्या? सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? दिस एंड दिस, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मतलब 144। इज दैट ओके? समझे? इसमें रिपीटेशन का कोई चक्कर नहीं है, इट वाज इजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? It says how many different 6-digit numbers can be formed using the digits in the number 659942. 659942. It's a 6-digit number. 6-digit number 659942. How many of them are divisible by 4? ठीक है, चलिए अभी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, 6p टोटल नंबर
ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे बता दो? 6p 6 फैक्टोरियल 6 factorial अपॉन 2 फैक्टोरियल, yes बराबर है क्या? हाँ 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड दिस विल इक्वल टू 360। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, डन। अब उन्होंने पूछा है कि 360 अगर नंबर से इसमें से डिविजिबल बाय 4 चाहिए, डिविजिबल बाय 4। अब आपने मेरे ख्याल से स्कूल में 2 टेस्ट, 3 टेस्ट, 5 टेस्ट ये सब सीखे हैं। एनी नंबर डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 4 ये सीखा होगा। मुझे बताओ व्हाट इज फोर्थ टेस्ट, याद है? last 2 digits should be divisible करेक्ट। डिविजिबल बाय 4 क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4, तो वो डिविजिबल बाय 4 हो जाता है। समझे क्या? तो इसमें से लास्ट 2 डिजिट्स क्या क्या हो सकते हैं? इसमें से क्या क्या हो सकते हैं? 24, फिर 64, 52 है ना? 52 also 62, 92 62 भी तो है। 94 नहीं 62 62 is not there, 62 not there। 90 92 और कौन से हो जाएंगे? 24, 52, 64, 92, 96 56 and 56 बराबर है क्या? So these are the numbers। अब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मेरे को चाहिए, कैसे करेंगे? लास्ट 2 डिजिट्स आर 24, लास्ट 2 डिजिट्स आर 64, ये कैसे पॉसिबल होगा? तो these are total 6 अरेंजमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, एक एक करके हम देखते हैं यहाँ पे। अब एक अरेंजमेंट करने का क्या तरीका है कि भाई मुझे 6 डिजिट नंबर तैयार करना है, उसमें से लास्ट 2 डिजिट यही है, समझो कि 24 मान के चले। अब 24 अगर हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो फिर क्या बचेगा इसमें से? बता दो मुझे। 24 2 और 4 गया, तो ये जो 4 डिजिट है उसको अरेंज करने का तरीका बता दो, क्योंकि इसको अरेंज करने का एक ही तरीका है। 4 factorial उसका 4 factorial या दिस विल बी 4 फैक्टोरियल, लेकिन उसमें एक रिपीटिशन है, डबल लाइन है। 4 factorial upon 2 Yes। factorial इसके कितने तरीके हो जाएंगे? 4 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 2 फैक्टोरियल। सेम चीज होगी तुम्हारे 64 के लिए भी, बराबर है क्या? yes सेम चीज होगी तुम्हारे 52 के लिए भी, yes सेम चीज होगी 56 के लिए भी। yes समझे क्या? हाँ रही बात 92 92 की, 92 की बात कैसे करोगे और 94 की वो बता दो। हाउ आर यू गोइंग टू डील विद 92 एंड 94? ग्रुप बनाना 92 का एक ग्रुप बना लेंगे। 5 factorial यस, तो पहले तो मुझे इसमें से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब एक 9 यहाँ पे ले लिया, एक 9 उधर गया, कैसे भी हो सकता है। तो चलो ये 92, दिस इज ओनली वन वे ऑफ डूइंग इट। अब ये बाकी के जो है इसमें कोई ये नहीं है कि भाई इसमें अभी देखो 9 और 2 चला गया, तो यहाँ पे दिस इज ओनली 4 फैक्टोरियल, बराबर है क्या? yes सेम थिंग इज फॉर 94 ऑल्सो, क्योंकि एक 9 इधर गया, एक 9 इधर बचा, तो इधर कोई रिपीटिशन नहीं है। so 4 factorial दिस इज 4 फैक्टोरियल। आई होप यू गेट दैट। yes ठीक है, तो दिस इज, अब मुझे बता दो कि ये टोटल नंबर ऑफ इसके अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे? दिस और है, और समझे क्या? तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इट विल बी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 2। समझ में आ गई बात? सो व्हाट विल बी द टोटल आंसर हियर नाउ? दिस इज 4 3 is 12, 2 is 24 upon 2, 24 upon 2 is 12, 12 4 is 48 plus 4 3 is 12, 2 is 24, 2 is
48, so total 96. टोटल कितने अरेंजमेंट्स हो जाएंगे वहाँ पर? 96 अरेंजमेंट्स आते हैं. तो इन्होंने जो आंसर वहाँ पे शायद 120 या 44 जो भी कुछ दिया है वो रॉन्ग आंसर है, क्योंकि वो आंसर होना चाहिए 96. इज दिस क्लियर? ओके, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. 15th क्वेश्चन देखो अभी. Find a number of different ways of arranging the letters of the word platoon. Platoon. एक ऐसे एक रिपीटिशन है, डबल ओ दिया है. If the two O's are never together, two O's never together. First one, two O's not together. कैसे करोगे? टोटल Okay. Which O is together find करना. अच्छा, टोटल अरेंजमेंट्स डिवाइडेड बाय Minus. ओज टुगेदर. हाँ. करेक्ट. सो करेक्ट. टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे? टोटल अरेंजमेंट्स N is equal to 3 3 6 1 7, so 7 factorial upon 2 factorial. That is 3 4 5 6 7. बराबर है क्या? So that will be 4 3 12 12 25 60 into 5 7 45. So that will be 0 side में 12 7 24 25. Okay, and O's together ऐसा करेंगे. ठीक है, 2 O's together के लिए मुझे उसका एक बंच करना पड़ेगा. bunch. तो उसका बंच जो होगा दैट इज ओनली वन वे ऑफ डूइंग दिस. ओके, और ये एक बंच Plus प्लस Five. 5. सो टोटल 6 एंटिटीज टू बी अरेंज 6 एट अ टाइम. Six सो दैट इज 6 factorial. फैक्टोरियल. बराबर है क्या? हम्म. 6 फैक्टोरियल का मतलब होगा 6 5 4 3 जगह है 6 5 4 3 2 1. 7 पंचे 23 30 4 3 12 120 और 7. ठीक है. Therefore, required number of arrangements जिसमें O's together नहीं है, required number of arrangements जिस अरेंजमेंट में 2 O's not together ऐसा जो अरेंजमेंट है वो कैसे होगा? 25 20 minus 720. So that will give me 0 0 7 8 15 1800 arrangements are there. इसमें the 2 O's are not together. Is this okay? समझ में आ गया ना? Alright, great. अगला पार्ट जाओ, यहाँ पे क्या दिया है? Next part is consonants and vowels occupy alternate positions. Consonants and vowels. इसमें कौन से vowels है? A, O and O. And consonants कौन से हैं फिर? P, L, T, L. समझे क्या? They want that the consonants and vowels will take the alternate positions. तो मैं पहले अरेंज करूंगा consonants को. 1 2 3 4 consonants. Arrange the consonants. 4 consonants and 4 places. No repetition. There are 4 factorial ways are there. First part is done. Yes. अब मुझे वहां पर इनको अरेंज करना है. बराबर है क्या? Yes. 3 में से जगह कितनी है मेरे पास? एक काम करते हैं, पहले हम वॉवेल्स को अरेंज करते हैं. सॉरी, आई फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज वॉवेल्स. पता चलेगा क्यों तुमको. 1 2 3 वॉवेल वॉवेल वॉवेल. ठीक है, ये मैंने अरेंज किया था. तो 3 जगह हो गई. So it will be like 3 factorial upon 2 factorial because there is a repetition. समझे क्या? Yes. 3 वॉवेल्स को अरेंज करने के बाद यहाँ पर 4 कंसोनेंट्स हो जाते हैं बराबर से. सही है ना? Yes. तो इनको अरेंज करने का तरीका है into 4 factorial. So what will be the answer here? Answer will be 3
into 4 3 the 12, 12 to the 24 ways, 72 ways are there. Yes. ठीक है. अब इसमें मैंने शुरुआत पहले क्या करी थी और वह मैंने क्यों स्टॉप किया आपको मैं आपको बता दूं कि अगर मैं कंसोनेंट्स को अरेंज करता पहले सी 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 तो वॉवेल्स के लिए फिर मेरे को 5 जगह हो जाती है यहाँ पे. उस 5 में से 3 पहले सिलेक्ट कर लो. 5 में से 3 जगह सिलेक्ट कर लो 5C3 और इन 3 जगहों पर ये 3 अरेंज कर लो. दैट इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. ऐसा सब करना पड़ता है मेरे को. Isn't it? उससे ये बेटर है कि यहाँ पर इन तीनों को अरेंज करने के बाद अपने आप 4 जगह हो जाती है. इज दैट ओके? तो इसलिए टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन आई डिड दिस वे फर्स्ट. इज दैट ओके? Yes. वेल दैट इज द आंसर. टेक द स्क्रीनशॉट. और ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गया.